that God has a special plan for you. और खुशखबरी ये है कि खुदा ने आपके लिए एक मंसूबा तैयार किया है। I just came from a wonderful meeting in Africa this week and it was marvelous. गुजरे हफ्ते में साउथ अफ्रीका में था और वहाँ पर जो हमारी इबादत थी वो बहुत ज़बरदस्त रही। We had so many people healed of different diseases, so many people blessed in the meeting. और वहाँ पर बहुत से लोगों ने बीमारियों से शिफा पाई और लोगों ने बरकत को हासिल किया। We had so many people under demonic problem that were set free in Jesus' name. बहुत से लोग वहाँ पर बदरू गिरफ्तार थे और खुदावंद ने उनको वहाँ पर रिहाई दी। And guys, I came to tell you by the grace of God, I will be coming to Pakistan. और खुदावंद का फजल अब हम पर है और बहुत जल्द मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। By the grace of God, I will be coming to your church with Pastor John in Jesus' name. So we're going to organize very soon for me to come down. और बहुत जल्द मैं पास्टर जावेद के पास आपके चर्च में आऊँगा और यहाँ पर मैं आप लोगों के दरमियान खिदमत करूँगा और इबादत मुनक्किद होंगी। In Jesus' name. As I said to you guys, when I was in Africa, we saw a lot of people healed. There was a small baby who was very sick. We prayed for the baby and immediately the child was healed. जब मैं अफ्रीका में था तो हजारों की तादाद थी और उस तादाद में एक छोटा सा बच्चा था और वो बीमार था। जब मैंने दुआ की तो खुदा ने उसे फिलफौर शिफा दे दी। There was another lady with a very severe spine issue in Jesus' name and she could not move her body. I prayed for her and the power of God touched her and she was healed. और एक और खातून थी उस मजमे में और उस औरत को कुछ मर्ज था, स्पाइनल का मर्ज था और खुदा ने उसे शिफा दी और वो आजाद हो गई। There was one lady in Jesus' name, she had a serious growth in her stomach and for 5 points, bless God, we prayed for her and the 5 points disappeared. और एक और औरत थी और उसके पेट के अंदर कोई गदूद भर गई थी और मैंने उसके लिए दुआ की और खुदा ने उसे भी शिफा दे दी। There were many people with high blood pressure and diabetes that were healed on the spot and are not taking the tablets anymore, immediately healed. और उस मुकाम पर खुदा की कुदरत इस तरह से काम कर रही थी कि फौरन लोग शिफा पा रहे थे। हालेलुया। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। Jesus is a healing Jesus. यीशु मसीह शिफा देने वाला यीशु है। Jesus is a delivering Jesus. यीशु मसीह बीमारी और बदरूहों को निकाल देने वाला यीशु है। Jesus is still setting the captives free every corner. और यीशु मसीह हर एक को जो उसको बुलाता है उसको आजाद करता है। There was a young gentleman in Africa who had not worked since 2019. I prayed for him in Jesus' name and he got a big job just like that. 2019 में अफ्रीका में मैंने किसी एक शख्स के लिए दुआ की और खुदा ने उसकी जिंदगी के लिए दरवाजे खोले और उसे बहुत बेहतरीन जॉब मिली। I came to tell all of you, wherever you go around the world, there are problems. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वहाँ पर मुसीबतें आपके साथ जरूर रहती हैं। Problems are there in Africa, problems are there in the UK, problems are there in Pakistan, problems are there wherever you go. मुसीबतें अफ्रीका में भी है, यूके में भी है, दूसरे ममालिक में भी है और पाकिस्तान में भी मुसीबतें। There is no family that has no problem. There is no family that has no problem. कोई ऐसा खानदान नहीं है जिसके अंदर या उसके घराने में मुसीबत या परेशानी ना हो। I'm ministering in Switzerland, I minister in Africa, South Africa, I minister all over the place. And I'm here to tell you, there is no family with no problem.
मैंने स्विट्जरलैंड में खुदा का कलाम सुना। जहाँ भी मैं दुनिया में गया हूँ वहाँ पर मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा खानदान नहीं जिसके अंदर मुसीबत या परेशानी ना हो। Sometimes when we're going through problems, the devil will make us believe that it's unique to us. I'm going to tell you, everyone has problems. और जब भी हम मुसीबत में गिरते हैं, शैतान हमें उन मुसीबतों के जरिए से चक्कर में डालकर गुलाम बनाने की कोशिश करता है। But Jesus Christ is the way. लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह राह है। Jesus Christ is the truth. यीशु मसीह सच्चाई है। Jesus Christ is the light. यीशु मसीह हक है। Jesus solves problems that no man can solve. यीशु मसीह उन परेशानियों को हल कर सकता है जिसे कोई भी हल नहीं कर सकता। Jesus heals diseases that no man can heal. यीशु मसीह उन बीमारियों से शिफा दे सकता है जिससे किसी भी जरिए से शिफा ना हो सके। Jesus gives blessing when no man can give you. यीशु मसीह आपको वो बरकत दे सकता है जो दूसरा कोई भी आपको नहीं दे सकता। I came from a family that rejected me because I believed in Jesus. और मैं यहाँ पर आपके दरमियान इसलिए हूँ ताकि मैं आपको यीशु मसीह में आपकी सलामती चाहूँ। My family used to trust in ancestral spirits. Sorry. My family used to trust in ancestral spirits. यीशु मसीह में मेरी जो फैमिली है, मेरा जो घराना है, वो खुदा के रूह पर भरोसा करती है। And they rejected me because I trusted in Jesus. और वो इसलिए है क्योंकि जिसका रूह है, मैं उस यीशु पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया। But right now, as I speak, all of my family are Christians because they saw the power of God and the grace of God upon my life. और एक वक्त ऐसा था कि मेरी फैमिली जो है मुख्तलिफ तरह की तासीरों के पीछे थी, लेकिन मेरे वसीला से अब वो सब बहाल हो गए और खुदावंद के पास आ गए। I did not try to convince them that Jesus was the way. और मैंने उनको ज्यादा ये बताने की कोशिश नहीं की या कन्विंस नहीं किया कि यीशु मसीह राह है। They saw by my life, when my life began to change, when I became blessed, when I began to move forward, they saw that something had changed. और उन्होंने देखा मेरे जरिया से कि यीशु मसीह जो है इस शख्स के अंदर है और इसको यीशु ने बदल दिया है। I've been to tell you guys that nobody sometimes will like it when you serve Jesus. और उन्होंने इस बात को जान लिया कि यीशु के सिवा कोई भी दूसरा ऐसा नहीं जो सब कुछ कर सकता हो। But Jesus said, love everyone, judge no one. और यीशु मसीह हर एक से प्यार करता है, किसी से वो ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता। यीशु सबसे प्यार करता है। Now, when my family sees the grace of God upon my life and the presence of God in Jesus' name, that's when they saw that Jesus is real. और अब मेरे घराने की हालत ये है कि आप वो पूरी तरह से यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और मेरे घराने की हालत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। I've been to tell you guys, do not worry if people reject you because of your faith. God has a special plan for you. और आप जो खुदा पर ईमान रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप खुदावंद में परेशान ना हो। The only thing is for us to prove that we have the life and to prove it by faith. और हमारे पास जो सबसे बड़ी और अच्छी चीज है वो हमेशा की जिंदगी है जो हमें ईमान से मिली है। Jesus said something in the book of Mark chapter 11 from verse 24. यीशु मसीह ने मरकस की इंजील और उसके 11वें बाब में कुछ कहा। Look at Mark chapter 11 from verse 24 to 25. Mark 11 verse number? Mark chapter 11 from verse 24 to 26. 24वीं आयत से 26वीं आयत तक मरकस 11 24 से 26। Shall I read? Jesus said, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them.
और 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। Look at verse 25. It says, and whenever you stand praying, और 25वीं आयत को देखिए, give लिखा है, them that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारा गुनाह माफ करे। Verse 26 says, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive you your trespasses. मरकस 11:26 में लिखा है कि और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। We immediately say something that prayer can be affected by unforgiveness. और इसका मतलब ये है कि हमारी दुआ किसी चीज से असरअंदाज होती है, और वो असर क्या है? किसी को माफ ना करना। When your family do bad things to you, forgive them that your Father may also forgive you. अगर आपके घराना, आपकी फैमिली आपके खिलाफ कुछ करती भी है तो आप यीशु के नाम में उन्हें माफ करें। Verse 24 says something. Verse 24 says, whatever things you ask when you pray, so we can ask whatever we need from God. क्योंकि 24वीं आयत में ये लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। So the only things that can affect my prayer is not what others are doing, it's whether I have unforgiveness towards them or not. जी, अच्छी बात उन्होंने कही कि हमारी दुआएं जो है, जो दूसरे हमारे खिलाफ करते हैं उनसे कभी भी असरअंदाज नहीं होती, जो हम करते हैं उससे असरअंदाज होती है। There are some of you listening right now, your family has done you wrong. और आप में से कोई ऐसा सुन रहा है जिसके खिलाफ उसके घराने ने बुरा काम किया है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। There are some of you listening right now, your friends have done you wrong. और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बरखिलाफ कुछ बुरा हुआ है। There are some of you listening right now, even your community has done you wrong. और आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसके खिलाफ उसके बाहर के जो लोग हैं उन्होंने कुछ किया है, जो कम्युनिटी में। But Jesus said forgive. लेकिन यीशु कहता है कि उन सबको माफ करें। Jesus said forgive. यीशु कहता है कि माफ करें उनको। Jesus said forgive. यीशु फिर कहता है कि माफ करें उन सबको। Let them go from your heart. अपने दिल से उन्हें माफ करें। They will affect your answered prayer. और क्योंकि अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपकी दुआएं जो है वो ना सुनी जाएगी। I'll never forget, as a young boy before I came to the UK, एक नौजवान लड़का जो है यूके में था। my father disappointed our family and married some other wife. और मेरा बाप ऐसे घराने से ताल्लुक रखता था, यूँ समझ लें कि उसकी एक और भी बीवी थी। I used to respect and love my father very much as a young child. और मेरा बाप मेरे नौजवान जो उनका बेटा था उनसे बहुत प्यार करता था। But he left our family and moved in with another woman and had children in Jesus' name. लेकिन उसने अपने बेटे के होने के बावजूद भी अपनी बीवी को छोड़ा और कहीं और जाकर उसने शादी कर ली। At 13 years old, I got very angry and I used to fight everybody. और 13 साल बाद ऐसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा नाराज हुए और उनके मामलात में बड़ी गड़बड़ हो गई। I would fight anyone in Karachi. मैं किसी ऐसे शख्स को कराची में देखूंगा। I would fight anyone in Delhi. मैं दिल्ली में किसी ऐसे शख्स को देखूंगा। दिल्ली से इंडिया। I would fight. I was so angry. I was fighting everyone everywhere. और यूँ समझ ले कि ऐसे लोगों को अगर कोई देखता है तो उनसे उलझने की कोशिश करेगा। Because I could not forgive my father for what my father had done to us. और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था कि मैं कुड़ता रहता था और मेरे दिल में ये बात थी कि मैं अपने बाप को जो उसने ये काम किया है कभी माफ ना करूँगा। But at 24 years old, I gave my life to Jesus.
लेकिन जब मैं 24 साल का हुआ तो फिर मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। And I saw that a lot of my prayers were not being answered. और बहुत सी मैंने दुआएं की लेकिन मेरी दुआएं ना सुनी गई। And the Holy Spirit began to tell me that I must forgive my father. फिर खुदा ने अपने रूह के जरिए से मुझसे बात की और कहा कि तुझे अपने बाप को माफ करना होगा। I was having problems in my marriage and with my children because I had issues of unforgiveness. और मेरी फैमिली में, मेरी अज़वाजी जिंदगी में भी गड़बड़ थी, इसलिए क्योंकि मैं अपने बाप को माफ नहीं कर रहा था और मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही। But then when Jesus began to deal with me, when the Spirit of God began to speak to me, He said, forgive your father. और यीशु मसीह ने जब मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया और खुदा के रूह ने मुझे बताया, तो फिर मैंने अपने बाप को जो उसने हमारे साथ किया, मैंने उसको माफ कर दिया। For 6 months I began to pray and ask God in heaven. I said, Heavenly Father, help me to forgive my father. और माफ करने के बाद जब मैंने दुआएं करना शुरू की तो मैंने महसूस किया कि बाप ने आसमान खोल दिया और मेरी दुआएं अब आसमान तक जाती थी। Forgiveness is like an onion. I'm sure some of you have had an onion. You peel the onion layer by layer. So God began to help me forgive my father. आप यूँ समझ लें कि जब आप किसी को माफ नहीं करते, वो प्याज की मिसाल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे प्याज के ऊपर से बहुत से छिलके उतारते हैं और फिर वो इस्तेमाल में आता है, आपके ऊपर भी बहुत से ऐसे छिलके हैं जिन्हें उतारने की ज़रूरत है ताकि आप खुदा के लायक ठहरें। It took me 6 months, but in the end, God helped me to forgive my father. खुदा ने मुझसे 6 महीने तक मैंने इस अमल से मैं गुजरा, मैंने माफ किया और दुआ करता रहा और 6 महीने के बाद खुदा ने मेरे बाप को। And after 6 months, I phoned my father and I told my father I didn't and appreciated it. और मैं दुआ करता रहा और 6 महीने के बाद खुदा ने मेरे बाप को भी माफ कर दिया और खुदावंद में आने के बाद 6 महीने के बाद मैं फिर अपने बाप से मिला। Jesus is the only one that can help us forgive. यीशु मसीह ही है जो हमें दूसरों को माफ करने में हमारी मदद करता है। हेलो।